ناظرین کوشر خبر نام ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ طرف جموں کشمیر علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ سند مکان ضبط کرنے آمد اسی مطابق ون یہ پراپرٹی ملک دشمن سرگرمین مز استعمال کرنے یم پتہ آج صبح ای ڈی آئی پنس تحویلس مز نی یہ کت باون لائق زی مکان شہر سری نگر برزل بوٹ شاہس مز واقع اس آز ای ڈی آئی پنس تحویلس مز نیو تاہم لواقعینو طرف ون آمد زِ اس آئی ونیک تام ام حوالہ کانٛہہ تہِ نوٹس جاری کرنے ہمیں میڈیا کی پتہ چل رہا ہے سو وی ڈونٹ ہیو اینی نوٹس ہیئر. یہ گھر بند تھا؟ جی جی. ابھی آپ کس لیے آئی تھی یہاں؟ ایکچولی یہاں ہمارے ہیلپر ہیں, ہی از ود ہز فیملی ہیئر, سو انہیں سے ہم بولنے آئے تھے کہ اف دے ہیو ٹو ٹیک آؤٹ دیئر تھنگز آؤٹ, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا, اسی لیے. ادروائز وی ہیو جسٹ, ہمیں خود میڈیا سے پتا چلا, وی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دس. ہمارے پاس کوئی نوٹس نہیں آئی ہے ابھی تک. So you are not getting any notification till now? No, we have not received any notice. Any phone or any message? No, nothing. No, nothing. چل تھینک یو. آج انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں شبیر احمد شاہ جو کہ حریت لیڈر تھے اور ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی تھے, اور ان کی صنعت نگر جو رہائش ہے اس کو اٹیچ کیا گیا ہے. یعنی گورنمنٹ نے اس کو اپنی تحویل میں لیا ہے, جس میں کہا جو اسٹیٹمنٹس ابھی ای ڈی کی طرف سے آ رہے ہیں اس میں صاف طور پر لکھا گیا کہ پروویژنلی اس پراپرٹی کو جو آج ای ڈی نے اٹیچ کیا. آپ کو بتا دیں کہ 2017 میں این آئی اے نے شبیر شاہ کے خلاف ایف آئی آر درج کیا تھا, اور ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن کرتے کرتے ای ڈی آئی نے آج یہ کارروائی کی, اور ای ڈی آئی کے مطابق جو اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے جاری ہو اس میں صاف کیا گیا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہم تک پہنچے, جو انویسٹیگیشن ہم نے کی اس کے مطابق یہی پتہ چلا ہے کہ شبیر شاہ ابھی بھی ٹیرر فنڈنگ میں ملوث ہے, اور ان کو آج بھی پاکستان سے پیسے ملتے ہیں, خاص کر جو حزب المجاہدین ہو یا باقی ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ان کی طرف سے پیسے ملتے ہیں یہاں پہ جو ہے پیس ڈسٹربٹ کرنے کے لیے, اور جو یہاں پہ ملیٹنٹ ہوتے ہیں ان کو فنڈ دینے میں, اسٹوڈنٹ پیڈنگ کروانے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ ان میں بالکل ملوث ہے. اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی جو ایموویبل پراپرٹی ہے صنعت نگر میں جو کہ 21 لاکھ روپے کی ہے, اس کو آج ای ڈی نے جو ہے پروویژنل طور پہ اٹیچ کیا ہے, جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکے. تاہم یہاں پہ ان کے گھر والے تھے, ان کی بیٹی نے آج میڈیا سے بات کی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی نوٹس نہیں ملا ہے, کسی طرح کی کوئی سرکولر ان کے پاس نہیں ہے, اور نہ ہی ان کو کوئی اس کے بارے میں کوئی علم ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلا ہے, تاہم ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ان کے پاس کوئی نوٹس نہیں آیا ہے, سرکولر نہیں آیا, اور کسی طرح کی کوئی سمن بھی ابھی تک نہیں آئی ہے. کیمرہ مین خان مدثر کے ساتھ میں فیصل ریاض, گلستان نیوز, سری نگر. سرحدی ضلع پونچھس مز زمین نیرت ژلنہ سۭتۍ 2 نفر ہلاک ییٚلہِ زن بیٚیہِ 2 نفر زخمی سپدمٕتۍ. وننہٕ چھُ یِوان زِ آز صبح آو یہِ دردناک حٲدثہٕ پونچھ بفلیاز علاقس منٛز تَمہِ وِزِ پیش ییٚلہِ رہٲیشی مکانس پٮ۪ٹھ میٚژِو پل ؤسِتھ آو, ییٚمہِ کِنۍ تتھ منٛز روزن وٲلۍ 40 ؤرِش خاتوٗن تہٕ تٔمۍ سٕنٛز 10 ؤرِش بچی ہلاک سپدے. تو یہاں پہچان نسیمہ اختر زوج محمد لطیف تو روبینہ کوثر ولدی محمد لطیف سند طور سپزمز, تو یم سپدے جائے موقع پہ ہلاک. ات دردناک حادثہ مز کی نفر زخمی تو سپدمت, یم بچاؤ کاروی کرت ہسپتال نن آئے, یت تہد علاج جاری. تمہ واقع پتہ مقامی لوکو پولیس تو فوج طرف بچاؤ کاروی شروع کرنے آمز, تو زخمی فوری علاج خاطر ہسپتال نن آمت. تو یہ عوامی نمائندوں طرف انتظامیہ منگ کرنے آمد لواقعین گھس فوری مدد کرنے یون یت یون دہ گزارن سپدن مشکل. آپ کا نام؟ سمیر خان. جی. یہ جو بفلیاز میں ڈیرا گلی روڈ ہے, ہاں, اس میں وہ کٹنگ کر رہے تھے, اور ان کو بولا بھی تھا کہ یہاں پہ نیچے مکان ہے پورے, تھوڑا کٹنگ سنبھال کے کرو, پتھر جا سکتا ہے نیچے. مگر انہوں نے نہیں کسی کا سنا, رات کو کٹنگ کیا, اور صبح 4:30 بجے بہت بڑا سلائڈ آیا جس میں ایک مکان ہی پورا ڈیمیج ہو گیا. کتنے آدمی زخمی؟ اس میں 2 آدمی تو زیادہ سیریس ہیں, مگر ایک آدمی جو ہے وہ تھوڑا نارمل ہے, اور ایک مل نہیں رہی ہے لڑکی ابھی بھی. وہاں کون کون لگا ہوا؟ تو بہت ہے ادھر, ابھی کیا حساب ہے, ابھی رات کے پورے ادھر ہی پہنچے ہوئے ہیں سب. جی. بس یہی ہے کہ روڈ والوں کو سنبھال کے کام کرنا چاہیے, کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے نیچے. 1 مہینہ پہلے 2 مہینے انہوں نے پہلے کام سٹارٹ کیا. ہم نے ان کو بولا کہ کام مت کرو, ابھی NOC نہیں ملی ہے. ایک لڑکا, ایک ٹھیکیدار ہے ادھر 80 ٹھیکیدار کا, اس کا لڑکا, اس نے بولا کہ یہ میری زمین ہے,
उसने आकर ज़बरदस्ती मशीन लगा ली। हम शरीफ थे, हम बेचारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम शरीफ आदमी थे, तो हमारी क्या किया उन्होंने, उस दिन भी हमें इनकार किया, बोला नहीं जी ये मेरी ज़मीन है, और हमें बगैर NOC के उन्होंने काम शुरू कर दिया वहाँ। तो हमारे आज देखो कितना सारा माल मवेशी मर गया, और हमारे देखो एक को लड़की डेथ हो गई, दूसरी वो सीरियस है, लड़का वो सीरियस है, और माल मवेशी पूरा मर गया, और नीचे ग्रांट पूरा खत्म हो गया। रात को काम इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने बगैर इलीगल मशीन लगाई। अभी NOC भी नहीं मिली है। खाली हमारे वो हम शरीफ थे, हम कुम्हार हैं, उन्होंने सोचा ये एक गारा इनको क्या इनकी जमीन में लगाओ। मशीन लगाने से कबल आपको इतला दी गई नहीं? बिल्कुल कोई इतला नहीं, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमने ये भी कहा कि हमें पता था कि अभी NOC अलॉट नहीं हुई है, तो इन्होंने क्या बगैर NOC के इन्होंने काम शुरू कर दिया, जबकि वहाँ सारा जंगलात एरिया खालिस हमारा एरिया था, मालकियत, और हम शरीफ आदमी थे, और हमें शरीफ समझ कर क्या किया हमने। घर में कितने लोग थे? घर में 4 आदमी थे, एक बच्चा भाग के बाहर निकल गया। ये तरीका थोड़ा कि एक आदमी अगर माइनॉरिटी कमेटी में रहता है तो उसको दबा लो, कोई ठेकेदार बन गया, कोई आपने उन्हें पट्टे पूरे जमीन के पूरे पत्थर उन्हें बेचे, पूरे पत्थर सारे उन्हें बेच के वहां से बेचे हमारी जमीन के। मुतालबा ये है हमारा कि जो ठेकेदार इसमें मुलज़िम है, जो इसमें कंपनी मुलज़िम है, वो वहाँ आए, तब तक हम रोड भी नहीं खुलने देंगे। DC साहब खुद आए, SP साहब आए, मौका करें, मुलाजा करें, देखो NOC मिली है या नहीं मिली है, क्यों कैसे काम स्टार्ट किया। लगा हुआ था बफलियाज में, वहाँ लैंडस्लाइड हुई है, उसके नीचे मकान गिर गया, और मकान के नीचे 3 बंदे आ गए। एक छोटी लड़की है, एक लेडीज़ है कोई 45 ईयर्स की, एक मेल बंदा है, लड़का है वो कोई, उसकी भी 40 ईयर एज है। तो ये 2 इंजर्ड हमारे पास आ गए हैं, इनका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड करके हम GMC जोरी रेफर कर रहे हैं। एक जो लेडीज़ हैं वो क्रिटिकल हैं काफ़ी, स्पाइन इंजरी है उनको, हेड इंजरी भी है, तो जो मेल मेंबर है वो स्टेबल है। तो दोनों को जोरी रेफर करें? हाँ जी, दोनों को GMC जोरी हम भेज रहे हैं। शुमाली कश्मीर ज़िले कुपवारिस मज आवाज़ गुजर तो बकरवाल तबके तरफ कोठवास कुन पैदल एहतजाजी मार्च शुरू करने, यथ मज गुजर बकरवाल तबके सत वाबस्त लोकन हंद एक खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे DDC मेंबर राही मुस्तफा सिंह तरफ वन आमद जो हुकूमत तरफ हमेश गुजर तो बकरवाल तबके नजरअंदाज करने यवान। तमो सरकार किस तथ फैसलस नुक्तचीनी कर्मज यथ मज पहाड़ी तबके ते ST फिरिस्तस मज शामिल करने आमद। तमो अमाल हुकूमत अपील कर्म गुजर बकरवाल तबके सत वाबस्त लुकन हंद मसला अंजराना हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin यहंद मुश्किल दूर सपदन। देखिए आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है तो ये हमारी गुजर बकरवाल बरादरी है। तो आज आपने सुना होगा कि लास्ट टाइम से जिस तरीके से कुछ अपर कास्ट के जो लोग हैं तो उनको ST स्टेटस में मतलब इसमें लिया जा रहा है, उनको ST स्टेटस दिया जा रहा है। तो असल बात ये है कि वो मतलब ट्राइब है नहीं, उनको ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। तो इसी को लेके हमने बड़े सारे मतलब प्रोग्राम, आपने सुना होगा कि हमने जिरगा वगैरह वो भी स्टार्ट करे थे। और आज जो है हमारे जो एक्टिविस्ट हैं मुख्तलिफ जमातों के एक्टिविस्ट जो हमारी बरादरी के थे, तो आज वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। और आज उन्होंने ये फैसला कराया है कि हम यहाँ से मतलब कुपवाड़ा से स्टार्ट और कठुआ तक जो है वो एक पैदल मार्च की जाएगी, और हर जगह जो अपनी डिमांड है वो रखी जाएगी। हर DC ऑफिस के बाहर एक मैसेज दिया जाएगा कि असल बात ये है कि अगर आप इन लोगों के साथ छेड़खानी करते हो तो कल क्या होगा वो उसी टाइम देखा जाएगा। क्योंकि ये एक जो गुजर बरादरी है, अमन पसंद लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं। मतलब मैं कहूँगा कि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को नोट करिए कि ये हमारे जो लोग हैं ये भेड़ बकरियाँ लेके जब पहाड़ों में रहते हैं तो तब शेर भी हिम्मत नहीं करता कि इनके उस काफिले में आके तो वो इनके साथ कोई हेरा फेरी करे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने इनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जो इनके साथ हो रहा है। और आज हमारी बरादरी के एक्टिविस्ट लोगों ने यही फैसला किया है कि हम यहाँ से पैदल मार्च स्टार्ट करते हैं, अपनी बरादरी को जगाते हैं कि आप सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं रखे गए, आपको खाली वोट ही नहीं देना है। एक साइड से आप वोट देने के टाइम आप देखते हो और हर जगह मतलब जो भी गुजर बरादरी के लोग होते हैं ये पहली लाइन में खड़े होते हैं, और जब इनका हक देने के बजाय आप लोग छीन रहे हो। हम तो डिमांड करते थे कि आप इनका जो ये 10% रिजर्वेशन है आप इसको 15% करेंगे। जो रिजर्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर ये अटैक किया जा रहा है। अपर कास्ट को किस तरह आप डिक्लेयर कर सकते हैं शेड्यूल ट्राइब में, और एक बेस्ड और एक समझो पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो एक इन्होंने GD शर्मा की कमीशन है उसकी बेस पे ये किस तरह से अपर कास्ट जो आज तक हम पर हुकूमतें कर रही हैं उनको आज ट्राइबल स्टेटस दे रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया है रिजर्वेशन का, और हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज ये मार्च कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ गुजर बकरवाल कौम के लोग तो हैं ही, हमारे साथ जितने भी ट्राइबल लोग हैं और जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं वो सब यही चाहते हैं कि इस अपने रिजर्वेशन को बचाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए, और हमारा जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो हमें फराहम किया है उसको उसकी प्रोटेक्शन की।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी मज एक मीटिंग हुंद संज करने यथ मज पार्टी वर्करन हंद एक खास तादाद शिरकत कर अत मौकस पे पार्टी लीडर एहसन परदेसी सिंद तरफ वन आमुत यदवई बह पार्टी हाईकमान तरफ लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी हुंद जिम्मेदार बनाना आउस ताहम कर बह पार्टी खतर चुकसान कम युथ पार्टी यन वलिस इंतखाबस मज पन हुकूमत बनवित हेक तमो पार्टी वर्करन ते अपील करम तम तन पार्टी मजबूत बनाने खतर चुकसान कम करें युथ बाकी लुक ते पार्टी मज शामिल सपदान। देखिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमारी पार्टी ने जो पूरे वादी में कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज का ऐलान किया है, जिसमें पार्टी ने मुझे लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज बना दिया है। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और जो सारी हमारी पूरी टीम है इन सब की तरफ से क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। क़यादत ने हर वक्त मुझे काम करने का मौका दिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट लेवल्स पे काम करने का मौका दिया और हमने काम किया भी है। इंशाल्लाह आज अल्लाह ताला के फजल से पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पे डाली है। मैं नहीं समझता हूँ कि मुझ पे डाली है। अगर मैं इस लेवल पे आज पहुँचा हूँ ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, या जितने भी हमारे साथी मेरे साथ हैं ये इन सब की मेहनत है। इन सबों ने मेहनत की है, उसी का ये नतीजा है कि पार्टी ने आज एक ऐसा फैसला लिया है कि जिस पे हमें लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जिम्मेदारी जो है वो डाली गई है। देखिए मुकाबला कोई भी आसान नहीं होता और किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी फ़र्द को ये नहीं समझना चाहिए कि इंचार्ज बनाने से या मैंडेट मिलने से मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो जीत ली है। एक बैटल है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जो अपने साथी हैं इनकी दुआओं के साथ, आपकी दुआओं के साथ जो है इस बात का हमने अहद किया है कि लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा ही लहराएगा। शहर श्रीनगर में साफ सफाई यकीनी बनाना हवाल स्मार्ट सिटी तहत हूपर हन आमद ताम गोनिकनी दोहन यम नाकार बनियामेद वन पतमे वरी स्मार्ट सिटी तरफ SMCS 8 करोड़ रुपये फंड हूपर हन खतर वागुजार करना आमद तो युथी यम हूपर काम खतर शुरू करना आए ताम हेक्न यम 6 क्विंटल खत ज्यादा लोड तुलित यल जन 10 क्विंटल लोड तुलन एग्रीमेंट करने आमद। जिम्मेदारों से अमवाल कत करान वोनमुत यथकिन अवामुक हक ज़ाय करने ताम अमवाल डिप्टी मेयर श्रीनगर सिंध तरफ वन आमुत इम हवाली जल्दी तहकीकात करना। देखिए ये स्मार्ट सिटी के तहत हमें कुछ पैसे मिले थे हूपर्स खरीदने के लिए, और जो हमने इसमें एक जो बाज़ाब्ता प्रोसीजर होता है हूपर खरीदने का, तो हमने इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तैयार की थी और हमने MED को बोला था कि हमें इसकी टेक्निकल सैंक्शन चाहिए, जो कि MED ने ये हूपर्स जो है परचेज़ किए हैं। बाद में जो हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि ये 1 टन लोड उठाएगा तकरीबन 10 क्विंटल का, और 6 क्विंटल से इनका ये हाल है। तो अभी हम देख रहे हैं इसमें इंक्वायरी होगी कि ये स्पेसिफिकेशन ने चेंज क्यों की है। अगर हमें 10 क्विंटल यहाँ पे उठाने हैं, इनको लोड उठाना है 10 क्विंटल, तो ये 6 क्विंटल से इनका ये हाल है, तो ये सरकारी इमलाक को नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट को भी इसमें सोचना चाहिए, जो अफसर हजरात हैं जिन्होंने टेक्निकल सैंक्शन दी है उसमें इस चीज़ में कि इनको जो आवाम के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं, ये अभी जो असासा है ज़ाया हो रहा है। देखिए वो पहले कॉरपोरेशन जब हमारी बनी उससे पहले की वो उन्होंने ख़रीदे हैं, हमें उस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। तो इस बारे में हमें जानकारी है, हमने लाए थे, हमने सोचा था कि लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा, डोर टू डोर कलेक्शन होगी। जो हमारे ओपन गार्बेज शेड है शहर में, जहाँ पे आपको रोज़ शिकायतें होती है कि वहाँ पे कुत्तों की भरमार होती है ओपन गार्बेज शेड्स पे, तो हमने सोचा था कि ये सिस्टम शहर में कम होगा, इस चीज़ से इनकी जो लोगों को सहूलियत है, बुनियादी सहूलियत वो मिलेगी। मगर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे जो यहाँ पे अफसर बैठे हैं जिनकी ये टेक्निकल सैंक्शन जिन्होंने इसकी दी है, जिन्होंने ये खरीदे है और जिन्होंने ये पास किया है, तो मुझे लगता है ये सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँच। बिजुनी त्राला रोजन वाले मुकमी लुकुत खिलाड़ियों शिकायत बमान वोनमुत वही सपोर्ट्स काउंसिल तरफ 4 वरी ब्रोह बिजुनी त्राल क्रिकेट ग्राउंड मरम्मत खतर काम शुरू करने आमज
ताहम वस यह कम वन त मुकम्मल यमकिन खिलाड़ी आवलनस मज हनामेद तमो वन यह त्राल इलाको अख बोड़ मैदान यथ मज वारिया दूर पे आमद खिलाड़ी गिंदान ताहम अमिच हालत खस्ता हाल गमज यमकिन खिलाड़िन कहिया मुश्किलात व्यतरन पेवान तमो अमवाल इंतजामिया अपील करमज मैदान शर पर हवाला गसन संजीद कदम तुलने इन युथ खिलाड़िन हंद मुश्किल दूर सपदान। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आता हूँ, रेगुलर हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन ये ग्राउंड आज से पहले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ वैसा का वैसा ही है। अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जहाँ पे स्टेडियम्स वगैरह जो क्रिकेट्स के हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल या किसी और स्पोर्ट्स के हैं, उनका और इनका कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। यहाँ पर कोई भी आप क्रिकेट को छोड़िए, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए बच्चे को यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ के हुकाम उन्होंने हमारे साथ बच्चों के साथ काफ़ी टाइम आप वादे करते आ रहे हैं कि बच्चों के साथ ये हम ग्राउंड कंप्लीट करके देंगे, बाकी कुछ करके देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि देख सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम यहाँ पर है। कोई यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उन्होंने बस हमारे साथ वादे किए कि इसको ठीक करेंगे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, स्टेडियम की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी टाइम से हमने इसके लिए डिमांड की थी, यहाँ वहाँ पर भी प्रैक्टिस बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी मसला है। और पानी का भी यहाँ बहुत बड़ा मसला पानी का भी है, वो भी अभी तक मतलब मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने लाइन्स वगैरह के लिए यहाँ पर ट्रंच वगैरह भी खोदे थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर वाटर सप्लाई भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर यहाँ जो बच्चे हैं आते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए जिस तरह से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हम देखते हैं अच्छे अच्छे ग्राउंड्स होते हैं या स्टेडियम्स होते हैं, तो ये सब अगर ठीक होगा तो बच्चों में और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ेगी। महकमा ट्राइबल अफेयर्स तरफ आवाज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबलस मज जानकारी तो ट्रेनिंग कैंप प्रोग्राम सज कर यथ मज CEO गांधरबल, डिप्टी CEO गांधरबल, ZDO तुलमुला, नोडल अफसरों अलावा मुतलिका महकम के जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ स्पेशल स्कॉलरशिप तो नेशनल स्कॉलरशिप हवाले स्कूल जिम्मेदारन ट्रेनिंग दिन आय तथे ST कम्युनिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हवाले तिमन जान फ्राहम करना। आज हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से चलाई जा रही, उन स्कीमों की जानकारी हम अपने जो हमारे ZDO साहिबान आए थे या हमारे इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर साहिबान आए थे, उनके साथ शेयर करें कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पहली तीसरी हमारी आज मीटिंग है, इधर अवेयरनेस कैंप है। इससे पहले हम कल बांडीपोरा गए थे, गुरेज गए थे, जहाँ के लोगों को खासतौर पर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोगों को हमने डिफरेंट स्कीमों की जानकारी दी है। हमारे पास 3 किस्म की स्कॉलरशिप स्कीम है। नंबर 1 है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो फर्स्ट से लेकर 8 तक है, उसके बाद है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 9-10 है, और उसके बाद ग्रेजुएट और PG लेवल के लिए अलग से स्कॉलरशिप एक है। तो इन सब स्कीमों की हमने जानकारी दी है। हमारे जो INO साहब आए थे या दूसरे हमारे दोस्त आए थे डिफरेंट स्कूलों से, कि वो कैसे NSP पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया उसके लिए होना चाहिए। तो उसी और हमारे और भी स्कीमों के बारे में हमने बात की कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन कौन स्कीम चला रहा है, या कौन सी डेवलपमेंट स्कीम हमारे पास है, या एजुकेशनल हॉस्टल वगैरह की बात हुई थी। इन पे हमने आगे भी और भी अवेयरनेस कैंप करने हैं डिफरेंट स्कीमों के माध्यम से। लेकिन आज जो हमारा पर्टिकुलर मकसद था वो यही था कि हम स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में लोगों को बताएं। कहीं पे इशूज़ है कि इनकम सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रही है। मैंने जो हमारे जो दोस्त जिनने ग्रीवेंस आई है, मैंने उनसे बात कि आप उनसे इन राइटिंग हमें लिखे कि कहाँ कहाँ पे, देन वी विल टेक अप द मैटर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर फिरोज अहमद शाह सिंह तरफ वन आमुद यदवई पार्टी हाईकमान तरफ देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी हुंद जिम्मेदार बनान आउस, ताहम कर पार्टी खुद चुकसान कम युथ पार्टी इन वलिस इंतखाबस मज पन हुकूमत बनवित हेक। तमो पन पार्टी वर्करन ते अपील कर्म तिम तन पार्टी मजबूत बनाने बाबत चुकसान कम कर युथ बाकी लोग ते पार्टी मज शामिल सपदन। इंचार्ज की जो जिम्मेवारी उन्हें दी है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेवारी जो पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया उस भरोसे पे खड़ा उतरने के लिए। मैं पहले भी मेहनत काफ़ी कर रहा हूं। मैं यूथ के साथ था यहाँ पर, मैं साउथ कश्मीर का प्रेसिडेंट था यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस वक्त भी मैं काम कर रहा था पार्टी के लिए, और इंशाअल्लाह अब जिम्मेवारी ज़्यादा बड़ी है और ये
इतनी बड़ी पार्टी का इंचार्ज किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का बनना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इंशाल्लाह ताला इसके लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। जो लोग यहाँ पर है मेरे दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके जो मसले मसाइल होंगे उन लोगों से मिलकर जो भी हमसे हो सकेगा गवर्नमेंट के पास जितने भी उनकी डिमांड होगी, जो उनकी जायज़ डिमांड होगी, जो लोगों के जो मसले मसाइल होंगे मैं उनको अपनी तरह से गवर्नमेंट के सामने जितना भी हमसे हो सकेगा हम उनके लिए काम करेंगे देर रात। और आपकी वसादत से मैं दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी जमात है, ये सबसे बड़ी जमात है यहाँ पर जो यहाँ के लोगों ने बनाई है। ये वही एक ही जमात यहाँ पर, मैं बार बार ये अपने तकरीर में भी कहता हूँ, अगर यहाँ पर कोई इलाकाई पार्टी है तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ के लोगों ने बनाई है, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है। बाकी जितनी भी जमातें यहाँ बनी है ये बाहर से दिल्ली से बन के आई है। यहाँ का जो इलाकाई पार्टी अगर हकीकत मानोगे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। और मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप लोगों की ज़रूरत है जो झंडे को मजबूत करने के लिए और हमारे लीडरों के हाथ मजबूत करने के लिए। आप सबसे गुजारिश मेरी ये है कि हम चलेंगे, सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे, यहाँ की आवाम की खिदमत के लिए हम निकलेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये पहले अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इसने इस काबिल समझा और फिर पार्टी ने इस काबिल समझा। और मैं जम्मू कश्मीर यदि पन्नी खूबसूरती तो आब हवा सहित पूरे दुनिया में मशहूर तो मुख्तलिफ मुल्क के कुन कुन पे यथ लुक हंदन मुख्तलिफ जायन हुंद सैल करान, यमन मज खास तौर पर श्रीनगर, गुलमर्ग, सुनमर्ग, भद्रवाह तो पहलगाम शामिल तो वह बॉलीवुड ते मुख्तलिफ फिल्मन हज शूटिंग खतर हुंद रुख करान। तो यथे कन भद्रवाह ते खूबसूरत इलाक यम पन्ने खूबसूरती सहित बॉलीवुड मुतासर कोर। भद्रवाह मज यदि फिल्म नूरी हज शूटिंग तस करना आमज तत आज ते फिल्म 2 स्टेशन शूटिंग जोर शोर सान जारी। तथ मौके पे फिल्म साजो बकिन लुकन ते मशवर दितमुत तम तन फिल्म शूटिंग खतर जम्मू कश्मीर हुंद रुख करवान। फिल्म 2 शूटिंग यदि भद्रवाह में जारी तथ अत मौके पे DDC डोडा विशेष पाल महाजन, SSP डोडा अब्दुल कुयूम तो बाकी अफसर थे मौजूद। शूट हम ज़्यादातर कश्मीर में ही करते थे, 18 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में बम्बई में। ठीक है सर, तो पहले शूट कश्मीर में होता था, यहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती नहीं थी, तो अब 2-4 साल से हमारी कोशिश रहती है कि सारे भद्रवाह में आएँ और भद्रवाह में शूट करें। जन्मभूमि है हमारी भद्रवाह, तो कश्मीर से कम नहीं है सर। ये अफसरान भी सारे बहुत अच्छे साथ देते हैं, फैसिलिटीज़ सब मिल जाती है। यहाँ शिव रेजेंसी खोली हुई है नीचे रवि भैया ने, तो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर रूम भी ले सकते हो आप। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी फिल्म शूटिंग से जो है भद्रवाह के नौजवानों को क्या फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल सर, मैंने तो पूरा स्टाफ ही यहाँ का रखा हुआ भद्रवाह का, 6-7 बंदे रखे हुए हैं। होटल वालों को फैसिलिटीज़ मतलब कि फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है सरकार की तरफ से भी, तो सर बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है हमें। संदीप जी, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपका प्रयास है कि भद्रवाह को प्रमोट किया जाए और लगातार आप प्रशासन का साथ तो बहुत अच्छा है सर हमारे साथ, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टीम आज आ रही है तो हमें 15 दिन से हम इधर वो छोटी छोटी चीज़ें जमा कर रहे हैं, वह फिर भी पूरी नहीं मिल रही हैं सर हमें। महीने में दूसरी वेब सीरीज़ की शूटिंग यहाँ पे शुरू हुई है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज OTT प्लेटफॉर्म्स की रीच है और जिस तरीके से लोग देखते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, उस हिसाब से आई कंसिडर दिस टू बी वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ प्रमोटिंग भद्रवाह विद व्यू टू प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। और हमारी जो कोशिश है कि भद्रवाह एक शूटिंग हब बन जाए, ये उसमें भी मदद करेगा हमारी। सर, आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से काफ़ी समय से शूटिंग रुकी हुई थी इस एरिया में, पिछले विंटर्स में काफ़ी शूट हुआ है, आने वाले समय में जहां तक हमें जानकारी 2 महीने और टूरिस्ट भी आता रहे। थैंक यू। लोगों ने मुझे यारियां, हीरोपंती जैसी फिल्मों में देखा है, अब हम भद्रवाह हैं, यहाँ की ब्यूटी और यहाँ के लोकल आर्टिस्ट जो हैं, काफ़ी तारीफ सुनी उनके बारे में, तो और हमारी जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल भद्रवाह से मैच कर रही। तो नाज़रीन, खबर नाम दियो इजाज़त, खुदा इस हवाले।